Okay. So in the last class, we solved till illustration number 5, and let us proceed and try to solve from illustration number 6. There are various these are decision making tools. Various scenarios are given, like whether to accept or reject an offer, whether to make or buy, whether how to select a suitable product mix. So these are the situation based problems. There are more problems in your study material. You go and try to solve those also. These are just some of the questions I have drafted from some other book. So you try and solve all the questions given you in your study material. Okay. Let us try to solve illustration number 6. What does the question say? Chair Manufacturers Limited present the following information for the past year: material cost, labor cost, fixed overhead, variable overhead. Then units produced is 12,000. Selling price is 50 per unit. Now the availability capacity is a production of 20,000 units per year. The firm has an offer for the purchase of 5,000 chairs at a price of 40 per unit. Okay, it is expected that the price, by accepting this offer, there will be a change in, there will be saving in rupee 1 per unit of material cost on all units manufactured. Okay, and fixed overhead will be increased by rupees 35,000, and the overall efficiency will drop by 2%. Draft report to the management giving your recommendation as to whether or not offer should be accepted. So the question asks me to draft a report whether this offer should be accepted or not. So what I will do, I will simply calculate the profit at the present rate and calculate the profit at the after accepting the offer, and find out which one is more beneficial to me, right? Very simple. So this is illustration number 6. Now in the present scenario, units produced is how much? 12,000. And after acceptance of offer, what will be the unit produced? The offer is for how many units? 5,000. The offer is for 5,000 chairs, right? So 20,000 is a capacity, but we are not producing at capacity. We are not utilizing the 100% capacity. The additional offer is for 5,000 units. So the revised production will be 17,000 units, right? Actually, I need a copy. Thank you. Okay. Now, what is the sales price? What is the sales? In the first case, the sales will be 12,000 multiplied by 50. So it is 6 lakhs. And in the second case, the sales will be, the existing sales will be at the rate 50, plus there will be additional sales of 5,000 at the rate 40. So what will be the total sales? What will the total sales? 8 lakhs, right? Now, what are the variable cost? Number one is material, then labor, then
variable overhead, these are the fixed cost. How much is material? Material is 1,20,000. Then labor cost is 2,40,000 and variable cost is 60,000. So these are variable cost. As we know, variable cost varies on the number of units. So this cost is for 12,000 units, so we can find out the cost for 17,000 units. So tell me the price for 17,000 units. इसका यूनिट रेट कितना होगा 10, इसका यूनिट रेट 20 एंड फॉर दिस द यूनिट रेट विल बी 5, है ना, राइट. 1,20,000 divided by 12, 240 divided by 12 and 60,000 divided by 12. So here, but again the question says that when you are accepting the offer, there will be a saving of 1 per unit in the material cost. So earlier it was 10, now the cost will be 9. And is there any change in labor cost? Yes, there is an efficiency, overall efficiency will drop by 2%. So the labor cost was 20, now it will be 100 by 98. You don't multiply it by 98% directly. ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में जब बात करेगा उसका रिलेशनशिप थोड़ा अलग होता है. ठीक है, अगर जहाँ पे आपका कॉस्ट 100 रुपया लग रहा था, अभी कितना लग रहा है 98. अगर आपका 20 रुपया लग रहा था, अभी कितना लगेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका 102 रुपया लग रहा था तो 100 रुपया लग रहा है. ये रिलेशनशिप गलत है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन 100 by 98. डायरेक्टली मैंने 98% से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 98% से डिवाइड क्यों नहीं किया डायरेक्टली. ठीक है, तो 20 into 100 divided by 98, it is 20.41 multiplied by 17,000, it is somewhere around 346, 939, right? And what about variable cost, variable overhead? It remains same, it remains 5 only. So 5 multiplied by 17,000, it is 85,000, right? So what is the total variable material? We have not written. Okay, into 9, 1,53,000, right? So contribution, what is the contribution? 1,80,000, and here 215,061 minus fixed cost. What is the fixed cost? 1,20,000. Is there a change in fixed cost? Yes, by 35,000. So it will be 1,55,000. So here the profit is 60,000, but in this case the profit is 60,061. The question is, you have been asked to prepare a report whether to accept the offer or reject the offer. Will you be accepting the offer? Why? Profit is insignificant. 61 rupees is very insignificant, where I am dealing with 8 lakhs, 6 lakhs. What is 61 rupees? वो तो मैं एक रिक्शा में चला गया, मेरे 61 rupees लग गया. Whether this 61 rupees is relevant? No. Then what will you suggest? Whether we should accept the offer? Just use your general knowledge. Nothing new.
क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, मेरा जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी था जो कि था 20,000, उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। हो सकता है आज मेरा प्रॉफिट नहीं दे रहा हूँ, फ्यूचर में देगा। ओके, so we'll have to write the answer accordingly, that although the profit is insignificant right now, but in future the accepting of the offer may generate revenue because of the utilization of the additional capacity, right? So this is it. Next, clear this? Next question. This question is from 2000 June term. Color Paints is a manufacturer of industrial dyes. It can produce and sell at maximum capacity of 20,000 liters. The sale price is 100 per liter. The present sales is 15,000 liters. And current cost structure is given. अगर 100 रुपया मेरा सेल प्राइस होता है तो डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा 30, डायरेक्ट लेबर कितना होगा 20, variable overhead 20 per liter already given, and profit is given. To produce over 20,000 liters and up to 10,000 liters means if I want to produce up to 30,000 liters, some balancing equipments are to be installed at a cost of 10 lakhs, and the same will have a lifespan of 10 years. See, whenever this kind of languages are given that installation is required and there is a लाइफ स्पैन ऑफ सो एंड सो ईयर्स, क्या दिमाग में आता है? क्या दिमाग में आता है? SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन दिमाग में आता है कि नहीं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. द प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज एस्टिमेटेड टू गो अप ड्यू टू प्राइस एस्केलेशन एज अंडर. ये जो प्राइस है ये एस्केलेट होगा 10% in direct material from its present level of 30%. जो 30% था वो अभी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा. हाँ, 20%, 25% in direct labor from the present level of 20%. जो present level 20% था वो क्या हो जाएगा? 25%. ये वाला एस्केलेशन है एंड ये वाला रिप्लेसमेंट है कंप्लीटली. थोड़ा दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है ना? फिर से पढ़ो. थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि नहीं? तो काम करते हैं, रेट से मल्टीप्लाई कर देते तो बेटर कंक्लूजन निकलेगा, है कि नहीं? ये मतलब अगर मान लो 30 रुपीज़ है, उसमें 10% ऐड करना है तो कितना बन जाएगा? 33. ठीक है. ये अगर 20 रुपीज़ था, अभी इसमें कितना ऐड करना है? 25% ऐड करना है तो 25. ठीक है. 50,000 फिक्स ओवरहेड में इंक्रीज हो. ये सब कब इंक्रीज होगा? व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द कैपेसिटी. नो, irrespective of increasing the capacity. ये है present cost structure is estimated to go up due to price escalation. Whether you are accepting the offer or not, whether you are making or buying, these prices will go up irrespective of any decision that you take. Okay. There is a proposal from a customer to take 10,000 liters additionally over the present level of output on a long-term basis at a price of 90,000. What is the current capacity? Current production 50,000 liters. There is an offer that someone wants to buy 10,000 liters. Apart from investing rupees 10 lakhs, fixed overheads will go up by 50,000 due to additional administrative expenses. So if I am accepting this 10,000 liters of demand, then there is an additional administrative expenses of 50,000. The company is in a dilemma as to whether to accept the 10,000 liters order or to use the present capacity of 5,000 liters, for which the company there will be a additional selling expenses of 50,000.
Present capacity is 15,000, but they want to utilize what is the total current capacity? The current capacity is 20,000. So they want to utilize additional 5,000 capacity, or what they can do, they can increase the capacity. How? By incurring the additional expenses. क्या एडिशनल एक्सपेंसेस आएगा? एक मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, 10 लाख का मशीन. ठीक है, अंडरस्टूड? क्वेश्चन अंडरस्टूड? ठीक है, दो ऑप्शन है मेरे पास. एक तो मैं 20,000 यूजिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या मैं 25,000 प्रोड्यूस कर सकता हूँ बाय इंस्टॉलिंग सम एडिशनल मशीन्स. इतना समझ आ गया? चलो सॉल्व करते हैं. पर के डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन? कुछ नहीं है, सिंपल है. इलस्ट्रेशन नंबर मोस्टली. So there are two alternatives. Alternative one, which is producing how much? 20,000 liters. Producing and selling 20,000 liters. Alternative two is producing and selling how much? 25,000 liters. है ना? हाँ? What, 10,000? Yes. Current is 15,000, right? Current is 15,000, so they want to produce additional. They have received an order for additional 10,000. So you have been asked to whether you will meet entire 10,000 demand or whether you will meet 5,000 demand. है ना? So sales. सर ये 25,000 कहाँ से आ गया? Sorry. सर ये ऑल्टरनेटिव 2 में 25,000 कैसे आ रहा है? कौन सा फिर से बताओ. ये प्रोड्यूसिंग ये तो आपने दो ऑल्टरनेटिव दिया है ना, 20,000 and 25,000 का. हाँ देखो, current production is how much? 15,000. What is the current production? Current production is 15,000. Now the question says there is a proposal from a customer to take 10,000 liters additionally over the present level of output. The present level of output is 15,000. And someone wants to buy 10,000 more. So whether I'll meet the demand of total 25,000 or I can meet the demand up to 5,000 by utilizing my existing capacity. Okay. Understood? Okay. So there are two options. We'll go step by step. Okay? Don't bother. What is the per unit sales price? 100 per liter. So total sales कितना होगा? 20 lakhs. And here it will be 25 lakhs. Right? Then direct. Okay, my bad. Yes. Very good. So existing sales will be 20,000. Oh, I mean 15,000. ना? नहीं, इसमें क्या बोला है? हाँ, अगर 10,000 के लिए है ना, सिर्फ एग्जिस्टिंग के लिए तो कुछ बोला नहीं. अगर 10 जो 5,000 इंक्रीज करे उसके लिए बोला नहीं. हाँ, एग्जिस्टिंग के लिए 100 होगा, वही बोल रहा हूँ. सो 20 lakhs के लिए 20,000 के लिए 100 करके होगा, प्लस 5,000 के लिए 90 करके होगा. ठीक है? हाँ, वही तो किया है ना. 90 करके ही सेल कर रहा हूँ. कितना लिखा? 10. अच्छा,
नो नो, आप इससे कंपेयर करो ना। नो, देयर इज अ थिंग इन दिस क्वेश्चन, यू शुड रीड इट केयरफुली। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। They want to anyways increase the capacity by 5000, whether 10,000 liters is acceptable or not, whether you accept this 10,000 offer or not, they will be increasing, utilizing the 100% capacity by producing 5,000 units. ठीक है, 5,000 is anyways प्रोड्यूस करेगा वो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ना, तो जो 10,000 अगर आप प्रोड्यूस करते हो ओवर एंड अबव 20,000, this 10,000 will be over and above 20,000. 20,000, 30,000. Correct. So alternative 2 will be 30,000. ठीक, कितना आ रहा है? 20 लाख एंड 9 lakhs, 29 lakhs. Then direct material, these are variable cost: direct material, direct labor and variable overhead. Now present cost structure is expected to go up by the following: 10% increase in डायरेक्ट मटेरियल। एग्जिस्टिंग कितना था? 30 था, अभी कितना हो रहा है? 10%, मतलब 110%, है ना। सिमिलरली 20 था, अभी उसमें कितना इफेक्ट आ रहा है? 25%। एंड वेरिएबल ओवरहेड में कुछ इफेक्ट नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड इज एज इट इज। ठीक है, सो इट इज 33, इट इज 25, इट इज 20। कितना आता है? टोटल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 78। ओके, 78 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 इज 15,60,000, and here it is 30,000 multiplied by 78, 23, 44. This is what? This is contribution. Yes. हाँ, वो प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं परसेंटेज सेम रहेगा। अभी जितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है उसमें चेंजेस आ रहा है ना। यू आर सेइंग दैट आई शुड अप्लाई दिस परसेंटेज ऑन 90, वो बोल रहे हो तुम तो। हम्म हम्म यस, ऑन सेल्स करके तो एक सेल्स का अगर 100 रुपीज़ रेट है, उसका आप ब्रेकअप निकालो, ये सेल्स है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना निकला, वैल्यू में कितना निकला? 30% है तो कितना निकला? 30 निकलेगा ना। अगर वैल्यू अलग होता तब मैं व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट सिंस वैल्यू इज 100, आई एम पुटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज नॉट परसेंटेज। ये 30 जो है परसेंटेज नहीं है, दिस इज वैल्यू। ओके, 4,40,000 and here it is 5,60,000। ये तो कंट्रीब्यूशन निकला, लेकिन मेजर मेरा जो चेंज है कहाँ पे है? फिक्स कॉस्ट में। सो फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट
तो एडिशनल जो इंक्रीज होगा वो गिवन है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है क्या वो गिवन है? नहीं है। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट गिवन है? नहीं है। लेकिन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? ये मेरा बन जाएगा वर्किंग नोट। जो 15,000 यूनिट्स के लिए फिगर्स गिवन है उससे हम लोग फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। कैसे? सेल्स कितना है 15,000 यूनिट्स का? 15 lakhs 100 करके, देन लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कितना कितना है? 30, 20 एंड 20। ठीक है, कितना बन रहा है? 70। 70 मल्टीप्लाइड बाई 15,000 कितना है? 7,50,000। 105, 10,50,000 ना? So this is what? This is contribution. Contribution at the rate 30. This is 4,50,000. But I don't know the fixed cost. But I do know one thing, and that is profit. Profit is 15 per liter. 2,25,000. Right? So what will be the fixed cost? This will be the balancing figure. 2,25,000. This is the existing fixed cost. Right? So fixed cost existing is how much? 2,25,000, and here also it will be 2,25,000. तो लेवल में कर देता हूँ, रुको। 2,25,000. Right? Now what will be the changes? एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? टू प्रोड्यूस 20,000 लीटर्स एंड अप टू 10,000 लीटर्स। पहला जो है उसमें बोला गया है अगर आप 20 से लेके 30,000 तक अगर प्रोड्यूस करते हो देन आपको एक एडिशनल इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है जो कि 10 लाख का पड़ेगा और जिसका पीरियड होगा 10 years। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये वाला आपके लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं, है ना? सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना होगा? कैलकुलेशन 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 lakh। व्हाट एल्स? 50,000 तो एनीवेज इंक्रीज होने वाला है दोनों में। ठीक है, 50,000 इसमें भी इंक्रीज होने वाला है, इसमें भी इंक्रीज होने वाला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल्स, है ना? नाउ देयर इज अ प्रपोजल फ्रॉम अ कस्टमर सो एंड सो, एंड उसमें अगर 10,000 वाला एक्सेप्ट करता है देन देयर इज एन एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ हाउ मच? 50,000। अगर मैं 10,000 वाला एक्सेप्ट करता हूँ एक मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएगा जो कि है 50,000। और क्या आएगा? और एक है नीचे, the company is in a dilemma as to whether to accept the order or for 10,000 liters or to use the present capacity for 5,000 liters, for which there will be an additional selling expenses. Now the question is, ये जो 50,000 है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा या एक के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं, वेदर टू फर्स्ट लाइन पर ना, द कंपनी इज इन अ डिलेमा एज टू वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर। सो इट इज टॉकिंग अबाउट इफ यू एक्सेप्ट द ऑर्डर देन देयर विल बी एन एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट।
सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेंटेंस अच्छा से पढ़ो। अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट, इफ यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर देन यू विल बी इनकरिंग द एडिशनल 50,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना। सो यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस और एक आएगा जो कि है 50,000, ठीक है। तो इसमें 2,75,000 विल बी द फिक्स कॉस्ट, एंड शेयर इसमें कितना आएगा 4,75,000। नहीं, I'm having a doubt. The selling expenses, the company is in a dilemma as to whether to accept the order or not, or to use the present capacity of 5,000 liters, for which there will be an additional selling expenses. Okay. What do you suggest? What do you suggest? दोनों में होना चाहिए, चलो दोनों में मार देते, चलो, बिकॉज सेल्स इज इंक्रीजिंग इन बोथ द केसेस ना। 50,000 इसमें तो ऐड कर दिया, इसमें कितना बन जाएगा 325। सो प्रॉफिट कितना आ रहा है दोनों केस में 1,15,000, इसमें नहीं, कैलकुलेटर मारो ना, 85,000। सो विच ऑफर इज एक्सेप्टेबल, alternative 1, that we should utilize our capacity of 5,000. So what, क्या किया हम लोगों ने इस सर पे? हेलो सर, यस 50,000 दोनों में नहीं लगना चाहिए ना, बस वो प्रेजेंट केस में लगना, ऑल्टरनेटिव 1 में लगना चाहिए वो। नहीं, पढ़ो लाइन, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाँ, लाइन पढ़ो फिर से। यूज अ हाँ, द कंपनी इज इन डिलेमा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंपनी इज इन अ डिलेमा एज टू वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर for 10,000 or to use the present capacity of 5,000 liter, for which there will be an additional selling expenses. Now selling expenses तो कब आएगा, बस जब आपका सेल्स second- इंक्रीज होगा, राइट। राइट, तो दोनों केस में सेल्स इंक्रीज हो रहा है ना, वेदर यू प्रोड्यूस आई मीन 20,000 or whether you produce 30,000, in both the cases the selling expenses will increase because the sale is increasing. वो एक लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। हाँ, एनीथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन? फिर से एक बार रिकैप करते हैं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका कैपेसिटी है 15,000 एंड सॉरी कैपेसिटी है 20,000 एंड यू आर करेंटली प्रोड्यूसिंग 15,000 यूनिट्स, बट यू वांट टू प्रोड्यूस 5,000 मोर, और यू 5,000 मोर पे आप अटक सकते हो, या 10,000 का एक एडिशनल ऑफर आपके पास आया वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मीन्स यू कैन ईदर प्रोड्यूस 20,000 और यू कैन प्रोड्यूस अप टू 30,000, बट फॉर प्रोड्यूसिंग 30,000 आई नीड टू इनकर सम एडिशनल फिक्स कॉस्ट, एंड in the existing cost structure there will be a change in the variable cost also, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा 78 निकाल के मैंने क्या निकाल लिया, अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। उसके बाद देखा मेरे पास तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो फिक्स कॉस्ट मुझे निकालना पड़ा, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट। वो कैसे निकाला मैंने, जो 15,000 यूनिट्स सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ था जो कि है प्रॉफिट, प्रॉफिट को लेके मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, है ना। दिस इज पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, ठीक है। 2,25,000 दोनों में एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आ गया, इंक्रीज भी दोनों में एप्लीकेबल होगा, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। देन एडिशनल एक मशीन इंस्टॉल करना पड़ता है इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 20,000 विच इज डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, है ना, तो उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा। देन सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों में हमने 50-50 ऐड किया, और एक
20,000 को ऊपर अगर प्रोड्यूस करते हो देन देयर विल बी एन एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमने प्रॉफिट निकाला एंड वी हैव सीन दैट ऑल्टरनेटिव वन इज मोर प्रॉफिटेबल। बट अगर हम लोग यहाँ पे सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट को एलिमिनेट कर सके, मे बी कोई भी एक भी फिक्स कॉस्ट अगर एलिमिनेट कर सके देन दिस विल बी प्रॉफिटेबल, है ना। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलो, कुछ बोल रहे थे? कहाँ हार्ड है ये? हार्ड था क्या? थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन पढ़ के देखो कितना हार्ड लगता है। देख के तो हार्ड लगा ही है ये क्वेश्चन, बट पढ़ के देखो और सॉल्व करके देखना, तुम लोग बताना कि ये हार्ड है या इजी था। अ कंपनी रनिंग एन ऑर्चर्ड विद एन एडिक्वेट, देखो क्वेश्चन जब पढ़ते हो मतलब अपना हिसाब से एक फ्रेमिंग कर लो। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, बट मैं खुद से जब लिख लूँगा मेरा एक कंफर्ट जोन आएगा मेरा हिसाब से, जब मैं क्वेश्चन को ग्राफिकली प्रेजेंट कर लूँगा ना। ये सब बहुत टेबल में लिखा हुआ रहता है, जो खुद का हिसाब से जब लिख लेता हूँ तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर मी। एग्जाम में भी यही चीज़ एक बार टेबुलेट कर लो तो 1-2 मार्क तो दे ही देगा, कुछ भी नहीं आता है तो। चलो, अ कंपनी रनिंग एन ऑर्चर्ड विद एन adequate supply of labor presents the following data and request your advice about the area to be allotted for the cultivation of various types of fruits। अच्छा, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज एक कंस्ट्रेंट का लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? बॉटल नेक या लिमिटिंग फैक्टर बोल लो। जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन है से 100 पर यूनिट, प्रोडक्ट बी का है 120 पर यूनिट। आप कौन सा प्रोड्यूस करोगे? फॉरगेट अबाउट बीईपी एंड ऑल। आप कौन सा प्रोड्यूस करोगे? बी प्रोड्यूस करोगे ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। नाउ इफ आई से अनदर प्रोडक्ट इज देयर, इसका है 110, बी प्रोड्यूस करोगे। चलो, इतना तक समझ आया? अभी मैं बताता हूं कि ठीक है, इसको एक बार कितना था, 100, 120, 115। नहीं, इससे बेटर है मैं एक काम करता हूँ, कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ। कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका 1,20,000, 1,50,000, ठीक है, 2 लाख। ठीक है। नहीं, अभी तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है, सपोज ये कल्टीवेशन कर रहे हो तुम, ठीक है। कल्टीवेशन में मैक्सिमम एरिया जो है, मैक्सिमम एरिया जो है वो है मान लो 100 एकर्स। आपके पास 100 एकर्स ही है ना। तो क्वेश्चन इज आप कौन सा प्रोड्यूस करोगे 100 एकर्स में? वाई? वाई? क्या ज़्यादा है? कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगर मैं बोल दूँ कि 1 यूनिट ऑफ ए प्रोड्यूस करने में, 1 यूनिट ऑफ ए प्रोड्यूस करने में, जस्ट मैं लमसम ले रहा हूँ, हाँ, मेरा थोड़ा एरिया का उतना नॉलेज नहीं है, 10 एकर्स लगता है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन पर एकड़ कितना बन गया? कंट्रीब्यूशन पर एकड़ कितना? 12 रुपया बन गया। 12 नहीं, कितना बनेगा? 12,000, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर एकड़ इज 12,000। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ ये प्रोड्यूस करने में मुझे 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 20 एकड़ लगता है, तब कंट्रीब्यूशन पर एकड़ कितना निकलेगा?
एंड ये प्रोड्यूस करने में आई एम एज्यूमिंग कि 40 एकर्स लगते हैं. 30,000 एंड ये प्रोड्यूस करने में 40 एकर्स लगता है, तो कितना बनेगा? क्या फिगर्स बोल रहे हो? 5,000. 2 lakhs divided by 40. 1,50,000 है, सॉरी. ये 7,500 क्या फिगर्स बोल रहे हो? अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे? ए, कंट्रीब्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आपका लिमिटिंग फैक्टर है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट. कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर में भी एरिया, लिमिटिंग फैक्टर में भी मशीन आवर्स, लिमिटिंग फैक्टर में भी यूनिट्स. आपको बोल दिया गया कि आप इतना मशीन 1 लाख मशीन आवर्स तक ही यूज कर सकते हो. देन हमें क्या निकालना पड़ेगा उस केस में? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर. आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस बेसिस पे हम लोग रैंकिंग करेंगे, उस बेसिस पे ही हम लोग प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, लेट अस सी. अंडरस्टूड? ये कंसेप्ट समझ आया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो इसी थॉट के साथ प्रोसीड करते हैं. इसमें क्या बोला है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गिवन, सीजन यील्ड इन बॉक्सेस पर एकड़. एक एकड़ में मेरा 500, 150, 100 एंड 200 प्रोड्यूस करते हैं हम लोग. कॉस्ट इज गिवन. ठीक है, मटेरियल और ये ग्रोइंग, पैकिंग एंड पिकिंग एंड पैकिंग पर बॉक्स एंड ट्रांसपोर्ट पर बॉक्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या गिवन है? फिक्स कॉस्ट गिवन है. हमें क्या निकालने बोला है कि द फॉलोइंग लिमिटेशन आर ऑल्सो प्लेस्ड बिफोर यू. व्हाट आर द लिमिटेशंस? The area available is 450 acres, so this is a limiting factor. But out of these 300 acres are suitable for growing only oranges and lemons. But the balance of 150 acres is suitable for growing any of the 4 fruits: apples, lemons, oranges and peaches. As the produce may be hypothecated to bank, the area allotted for any fruit should be demarcated in complete acres and not in fractions of an acre. Complete acres ही लेना है, and we should not take fractions. Okay. Next, the marketing strategy of the company requires compulsory production of all types of fruits in a season, and minimum quantity of one type should be 18,000. हर box 18,000 boxes produce करना है हर fruit का. Okay. So let us try to solve it. So illustration number is illustration 8. क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? एप्पल्स, लेमन्स, सीक्वेंस में है ऑरेंजेस एंड पीचेस. ठीक है, क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है? 15, 15, 30 एंड 45. सीजन्स यील्ड, यील्ड मतलब प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन कितना है? 500. ये बॉक्सेस में है ना, इन बॉक्सेस पर एकड़. एक एकड़ में 500 बॉक्सेस, 150 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस एंड 200 बॉक्सेस. नाउ टेल मी, सेल्स पर एकड़ कितना निकलेगा? एक एकड़ में मैं 500 बॉक्सेस प्रोड्यूस करता हूँ, यानी एक बॉक्स का प्राइस है 15. सो व्हाट विल बी द सेल्स? 7,500. एंड इसमें 2,250, 3,000 एंड 9,000. ठीक है,
नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़, वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़ निकालना है। ग्रोइंग, ग्रोइंग का कितना है 300, 225, 150 एंड 195। देन हाँ, पिकिंग एंड पैकिंग, पिकिंग एंड पैकिंग और दोनों का साथ में लिख देते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा 4.50 वॉट पर बॉक्स है ना। 4.50 क्या है पर बॉक्स, लेकिन हम लोग 1 एकड़ में कितना बॉक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 500। सो कितना होगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1.5 है ना, कितना है 2250। सिमिलरली बाकी का भी वैसे ही निकलेगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 कितना 675। फिर नेक्स्ट 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 450 एंड लास्ट 200 मल्टीप्लाइड बाय 9 1800। ठीक, सो कंट्रीब्यूशन कितना निकला, कंट्रीब्यूशन पर एकड़ है ना, ये पर एकड़ का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, मटेरियल कहाँ लिखा नहीं क्या मैंने, मटेरियल लिखा ही नहीं, रुको लिख देता हूँ। चलो मटेरियल यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है मटेरियल 270 पर एकड़ में ही है ये भी 105, 90 एंड 150। सो कंट्रीब्यूशन पर एकड़ कितना निकलेगा 7500। ये सेल्स है, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है ना। इसको कहाँ करता हूँ, कितना आ रहा है 4680। नेक्स्ट 1245 2310 6855। दिस इज व्हाट, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर एकड़। अभी आप क्या करोगे, रैंकिंग करोगे। रैंकिंग क्या होगा, कौन सा रैंकिंग ज्यादा सबसे बड़ा होगा, ये। नेक्स्ट, ठीक है, एंड ये, ठीक है। अभी मिनिमम एलोकेशन, मिनिमम प्रोडक्शन कितना करना है, मिनिमम एलोकेशन किस बेसिस पे होगा, मिनिमम आपको 18,000 प्रोड्यूस करना है ना। तो 18,000 प्रोड्यूस करने के लिए कितना एकड़ चाहिए, एक 18,000 बॉक्सेस के लिए कितना एकड़ चाहिए, 18,000 को हम लोग 500 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी 18,000 को 150 से डिवाइड करेंगे, देन 100 से, एंड
200 से कितना कितना आ रहा है 36, नेक्स्ट 120, 180 एंड 90। कितना एकर्स टोटल हो रहा है? टोटल एकर्स कितना हो रहा है 426। ठीक है, बचा कितना है? कितना एकर्स बचा हुआ है? कौन सा में प्रोड्यूस करेगा बाकी 24? ये वाला में रैंक 1 में करोगे, इसमें 24। ठीक है, सो 100 एंड इसका 114 बन गया, बाकी 180, 120, 36। और एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन है? और एक मिनिमम एलोकेशन का बोला ना कि एक 300 एकर्स में आप सिर्फ ऑरेंजेस एंड लेमन्स प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना? क्या कवर हो रहा है वो? लेमन्स एंड ऑरेंजेस 300 कवर हो रहा है ऑलरेडी, सो वी डू नॉट नीड टू बॉदर। अगर वो नहीं होता फिर से और एक कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता हमें, है कि नहीं? वो नहीं होता तो पहले हम लोग वापस से एक एलोकेशन करना पड़ता। वो अगर मान लो ये एलोकेशन तो हम लोग रैंकिंग का हिसाब से किया है ना? रैंकिंग और एक कंडीशन था कि मिनिमम एलोकेशन। अगर ये भी नहीं रहता, 18,000 भी नहीं रहता, तो व्हाट विल डू, विल सिंपली एलोकेट टू ईच। कुछ अगर कंडीशन नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना ऑरेंजेस या लेमन्स या एप्पल्स प्रोड्यूस करना ही है, वैसा कुछ कंडीशन अगर नहीं है, सिंपली हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? ईच। ठीक है, बट क्योंकि एक मिनिमम कंडीशन है कि आपको 18,000 प्रोड्यूस करना ही है, तो इसलिए हम लोग 18,000 प्रोड्यूस करेंगे। अगर मान लो 18,000 वाला कंडीशन है नहीं, डायरेक्टली आपको कंडीशन दिया गया है 300 एकर्स वाला, ऑरेंजेस और ये लेमन्स एंड ऑरेंजेस प्रोड्यूस करने का। मान फॉर लेट अस अज्यूम कि 18,000 वाला कंडीशन ही नहीं है, ठीक है? तब आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कैसे प्रोड्यूस करोगे? पहले आप क्या करोगे, 300 एकर्स ये दोनों में बांटोगे, क्योंकि 300 एकर्स में हम लोग कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो 300 एकर्स भी कैसे बांटोगे? सिर्फ ऑरेंजेस में मैं प्रोड्यूस करूंगा 300 एकर्स। वाई? बिकॉज रैंकिंग। ठीक है, बाकी जो बचा है 150, उसको मैं क्या प्रोड्यूस, उसमें क्या प्रोड्यूस करूंगा? पीचेस। बाकी दो मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा। अंडरस्टूड? क्लियर? हाँ, नहीं करेंगे ना अभी, अभी उसका पूरा प्रॉफिट निकालेंगे। तो अभी क्या निकालने बोला है? कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट निकालने बोला है ना। हम लोग तो रैंकिंग ही किया अभी, अभी क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं होगा, उसके बाद और कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, उतना वापस से कैलकुलेशन नहीं करना है। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? ये क्या है? एकर्स है, और हमने क्या निकाला था? कंट्रीब्यूशन पर एकड़ निकाला था। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, है कि नहीं? कितना आ रहा है? 36 मल्टीप्लाइड बाय 4680, 68,480। नेक्स्ट 149,400, 4 lakh, and last 114 multiplied by 6855, 470, 68। ठीक है, 6855 है, यही होगा। टोटल कितना निकल रहा है? कितना? 2920,230। ये टोटल कंट्रीब्यूशन। इससे हम लोग अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना है टोटल? ये सारा प्लस करके। गलत है क्या?
15 15 15 15 150। फिक्स कॉस्ट कितना है? 2 lakhs, सारा मिला के 2 lakhs है ना। सो प्रॉफिट इज 13,15,150। डिफिकल्ट था क्वेश्चन? डिफिकल्ट था सीरियसली? एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो। हमें क्या निकालना है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे लिमिटेशन हो, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। वो लिमिटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, मशीन आवर भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। छोटा कैसे करते हैं? ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? देखो, हम लोग पहले जो पीवी रेशियो निकाल रहे थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे थे, उसमें भी लिमिटिंग फैक्टर था। क्या लिमिटिंग फैक्टर था उसमें? प्रोडक्शन या सेल्स बोल लो, है ना। उसमें लिमिटिंग फैक्टर सेल्स था, जनरल वाला है। उसके अलावा भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, जो कि है फॉर एग्जांपल मशीन आवर्स, लेबर आवर्स एक्सेट्रा। हाँ, नहीं, कॉस्ट ड्राइवर तो कॉस्ट एलोकेशन है, वो तो हम लोग इसको कंट्रीब्यूशन में देख रहे, प्रॉफिट फैक्टर्स देख रहे, वो कॉस्ट हो गया, उसमें कंफ्यूज मत करो, वो कॉस्ट एलोकेशन का बेस है। अंडरस्टैंडिंग द, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग द लिमिटिंग फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे भी काम में आएगा, फाइनल्स में भी काम में आएगा, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर तो एक एलोकेशन हो गया, एक कॉस्ट ड्राइवर हो गया, कॉस्ट पर यूनिट हो गया। अब वही चीज़ है, बोल सकते हो वही चीज़ है, बट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट पर यूनिट निकाल रहे हैं। उसमें आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि फ्लोर एरिया आप इतना ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्लोर एरिया आपका इतना ही है, मतलब इतना स्क्वायर फीट आपका फ्लोर एरिया, फॉर एग्जाम्पल 5,000 स्क्वायर फीट आपका फ्लोर एरिया है, तो आप क्या निकालोगे? कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट निकालोगे। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हालांकि, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं सही एग्जांपल तो होगा नहीं, सही एग्जांपल होगा नहीं। चलो ये हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया स्कूल है, ये स्कूल है ना, आपको बोला गया ये एरिया आप इधर स्कूल के लिए यूज़ कर सकते हो या बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। आप क्या चूज़ करोगे? क्यों? आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर एकड़ या जो भी स्क्वायर फीट बोल लो, तो वही है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। यहाँ पे आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया एरिया, है ना। Next, a company produces and markets industrial containers and packing cases. Due to competition, the company proposes होगा to reduce the selling price, and if selling price, if the present level of profit is to be maintained, indicate the number of units to be sold in the proposed reduction and selling price. 5% से अगर reduce किया तो क्या होगा, 10% से reduce किया तो क्या होगा, and 15% से reduce किया तो क्या होगा। पढ़ो फिर से। सेलिंग प्राइस रिड्यूस करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए?
अभी का जो प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रॉफिट चाहिए, मतलब 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, 50,000 का प्रॉफिट, और प्लस उसके साथ साथ और एक चीज़ हमें चाहिए होगा, फिक्स कॉस्ट, है ना। फिक्स कॉस्ट कवर करना है और प्रॉफिट भी अर्न करना है। डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला याद है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। डिजायर्ड प्रॉफिट वाला, डिजायर्ड सेल्स वाला, सॉरी, डिजायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला है ना। तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में, एंड सी। फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5% रिड्यूस अगर करें तो। अभी करंट सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है ना। अगर 10% रिडक्शन किया तो कितना सॉरी 5%, इसमें करवाता हूँ, इसमें फिर मिट जाता है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। सो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना है, ₹10 है ना। सो रिवाइज सेलिंग प्राइस ये 5% रिडक्शन, फिर 10% और 15% है ना, और 15%। 5% करने से कितना हुआ 9.5, 10% करने से 9 एंड 15% करने से 8.5, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कितना है वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइड करके देखो, 1,80,000 ₹6 होगा। वेरिएबल कॉस्ट में तो कुछ चेंजेस नहीं है क्योंकि वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं है ना। सो कंट्रीब्यूशन कितना है इस केस में, 3.5, 3 एंड 2.5। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी हमें क्या निकालना है, डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है ना, डिजायर्ड सेल्स, सॉरी, डिजायर्ड सेल्स टू अर्न सेम प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना अर्न करना है हमें, एक तो 50,000 अर्न करना है, प्लस उसके साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी अर्न करना है। फिक्स कॉस्ट कितना है, 70,000। अभी इसको मैं अगर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करता हूं तो मुझे वैल्यू में निकलेगा, वैल्यू में मिलेगा, और अगर डायरेक्टली पर यूनिट से निकालता हूं तो मुझे यूनिट मिलेगा, है ना, जो फॉर्मूलाज मैंने लिखाया था। तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 3.5 करूंगा। फॉर्मूला क्या है ये, बेसिकली फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। सिमिलरली इसका भी वही निकलेगा, 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 3 एंड 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2.5, कितना आ रहा है, हम्म, 86, देन 40 एंड हाँ 48, ठीक है, डन। इतना ही था इसमें।
ओके, इजी था ये। नेक्स्ट, ज़्यादा हो जाए तो बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, X Limited has been offered a choice to buy machine between A and B. You are required to compute break-even point for each of the machines, the level of sales at which both the machines earn equal profits, the range of sales at which one is more profitable than the other. क्या क्या गिवन है, एनुअल आउटपुट गिवन है दोनों का, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और सेल्स गिवन है, प्राइस, सेलिंग प्राइस गिवन है ना। तो इसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, सारा कुछ निकल जाएगा। चलो पहले वही से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बीपी निकाल सकते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10। एनुअल आउटपुट ए एंड बी कितना है, 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। देन सेल्स at the rate 10, 1 lakh and 1 lakh, okay। then less variable cost है जो कि है नहीं हमारे पास, कंट्रीब्यूशन जो कि है नहीं, then less fixed cost 30 and 16, and profit is given 30 and 24। कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन, 60 आएगा इस केस में, एंड इस केस में 40। सो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 40 and 60, okay। So PV ratio contribution divided by sales into 100. Contribution is 60,000 divided by sales into 100, it is 60%, and here it is 40,000 divided by sales into 100 is 40%. So BP क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 30,000 डिवाइडेड बाय 60%, एंड हियर इट इज 16,000 डिवाइडेड बाय 40%। कितना आ रहा है, 50,000 एंड 40,000। Now BP in units, BP in units, यूनिट प्राइस कितना है, 10 है ना, सो 5,000 एंड 4,000। ठीक है, समझ आए यहाँ तक। ये ए का पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, हाँ सेल्स भी तो नहीं बोला था, बोला है सेल्स, बेबी सेल्स बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट बोल के छोड़ दिया। ठीक है, निकालने से निकालो, नहीं निकालने से नहीं निकालो, लेकिन फर्दर नेक्स्ट पार्ट में हेल्पफुल होगा ये यूनिट्स। कैसे हेल्पफुल होगा देखते हैं।
बी में क्या बताया गया है, द लेवल ऑफ सेल्स एट विच बोथ मशीन्स अर्न इक्वल प्रॉफिट। ये वही हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे, लेट द सेल्स इन यूनिट्स बी व्हाट एक्स। ठीक है, लेट द सेल्स इन यूनिट्स बी एक्स। अभी बोला गया है कि दोनों का प्रॉफिट इस लेवल पे इक्वल होगा। प्रॉफिट कैसे निकाल दे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। हाँ ठीक है, तो यूनिट्स सेल्स कितना होगा, एक्स 10x होगा। सेल्स कितना 10x है ना, 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। उससे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 है, 6x। उससे क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन नहीं, ये तो कंट्रीब्यूशन है। उससे क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। कितना है फिक्स कॉस्ट, ये ए का है। ठीक है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड, है ना। प्रॉफिट ऑफ ए क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, है ना। ठीक है, सेल्स कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और फिक्स कॉस्ट कितना है 30,000। सो दिस इज 10x, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 4x से लिख देता हूँ, 4x माइनस 30,000। प्रॉफिट ऑफ बी 10x माइनस 6x माइनस 16,000। सो 4x माइनस 16,000। बट ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसे तो निकलेगा नहीं, कैसे 4x माइनस नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। इसको ऐसा करके नहीं निकालना है, इसको हमें निकालना है सिर्फ ये वाला पार्ट लेके, सेल्स, क्योंकि दोनों का सेल्स इक्वल है, दोनों का सेल्स क्योंकि इक्वल है 10x। ओ अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत किया है, नहीं कुछ गलत किया है ना। कुछ गलत किया है शायद हम लोग। वेरिएबल कॉस्ट 6 किसने बोला, इसमें कितना है वेरिएबल कॉस्ट, इसमें क्या करते हो, तब तो ऐसे ही निकलेगा, कंफ्यूज हो गया बेकार में। इसमें 4x आएगा ना, ऐसे ही निकल जाएगा ये। ठीक है, अभी निकल जाएगा। सिंस प्रॉफिट इज इक्वल एट sales when sale is x, so we can write it like this, 6x minus 30,000 is equal to 4x minus 16,000। so 2x is equal to 30,000 minus 16,000, x कितना निकल जाएगा 7,000 units। so at 7,000 units, profit of both the product is equal, both the machine is equal। टेस्ट करके देखते हैं, है ना। ये A हो गया, ये B, ये सेल्स, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट, और ये प्रॉफिट। ठीक है, 7,000 में सेल्स दोनों का सेम होगा 70,000, वेरिएबल कॉस्ट इसका कितना था 4 रुपीज़ था, 28,000, एंड इसका कितना था 42,000 हो जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट 30 एंड 16, सो प्रॉफिट इज
12,000 है ना। ये चीज आपको करके दिखाना नहीं है, आपका सॉल्यूशन यही तक है। Now the last part of the question, the range of sales at which one is more profitable than the other. The range of product at which one is more profitable than the other. इसमें थोड़ा थोड़ा चीज समझना पड़ेगा हमें, कौन सा प्रोडक्ट का ब्रेक इवन ज्यादा जल्दी अचीव हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का ब्रेक इवन ज्यादा जल्दी अचीव हो रहा है। कैसे बी, ये ब्रेक इवन ये है ना यूनिट्स में, ये ब्रेक इवन है ना। ब्रेक इवन कौन सा जल्दी अचीव हो रहा है, बी। तो मैं बोल सकता हूँ ब्रेक इवन तक तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इज बी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे 7,000 यूनिट तक जाते जाते मेरा प्रॉफिट दोनों का इक्वल हो रहा है। यहाँ तक तो बी आगे है, ऐसा रेस चल रहा है मान लो, ठीक है, ऐसा रेस चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 4,000 यूनिट तक कौन आगे है, बी आगे है। फिर धीरे धीरे ये ए कैचअप कर रहा है, ये कैचअप करते करते इक्वल पहुंच गया। कहाँ पे इक्वल पहुंच गया, 7,000 यूनिट्स में। यहाँ पे जाके ये इक्वल में पहुंच गया। इसके आगे कौन जल्दी तेज भागेगा, 7,000 के आगे ए, बिकॉज पीवी रेशियो ए का ज्यादा है, ये तेज भाग रहा है, ये तेज भाग रहा है। इनिशियली इसका कम क्यों हुआ था, इनिशियली इसका कम क्यों, मतलब धीरे क्यों भागा था, ये धीरे भागा नहीं था, इसका स्पीड मतलब लेट स्टार्ट किया। वाई लेट स्टार्ट किया, बिकॉज इसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा था, वो फिक्स कॉस्ट कवर करते करते उसको टाइम लग गया, इसलिए वो रेस में लेट पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसका स्पीड ज़्यादा है, उसका स्पीड क्यों ज़्यादा है, उसका पीवी रेशियो ज़्यादा है, तो जल्दी कैचअप कर लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, वापस से पढ़ते हैं। The range of sales at which one is more profitable than the other. So I can say the BEP of product B is low. So at BEP, till BEP product B is more profitable. Further, at 7,000 units, the profit of both the machines is equal. So I can also say that up to 7,000 B is more profitable than the machine A. But after reaching the same profit, A becomes more profitable. After 7,000 units, A becomes more profitable because the PV ratio of A is more than B. ये जो स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूँ, PV ratio BEP, PV ratio BEP, कौन सा सिचुएशन में कौन सा सिलेक्ट करोगे, वही चीज़ है, थोड़ा अलग तरीका से, कि BEP तक आप प्रोडक्ट B सिलेक्ट करोगे, उसके आगे भी सिलेक्ट करोगे जब तक कि इक्वल प्रॉफिट है। लेकिन इक्वल प्रॉफिट रीच करने के बाद ए मेरे लिए प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो इसको लैंग्वेज आपको कैसे लिखना है, जस्ट राइट इट डाउन, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। द ब्रेक इवन ऑफ ए is at 5,000 units compared to that of 4,000 units in case of B. And at production level of 7,000 units, they earn equal profit. So it is quite clear that profit earning capacity, so it is quite clear that profit earning capacity
of machine B is more in the range 4000 to 6999 units of machine B is more in the range 4000 to 6999 units as it starts earning profit early. A will earn more profit beyond 7000 units because it has a higher what? It has a higher PV. It has a higher PV ratio. फोटो खींचना है, हो गया? मजा आ रहा है करके? इंटरेस्ट आ रहा है? अच्छा, और एक डिसीजन अभी लेना है हमें कि वेदर टू क्लोज डाउन द बिजनेस और सस्पेंड द बिजनेस क्लोज करना है या कंटिन्यू करना है, वो हमें डिसाइड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन में? प्रोडक्शन कैपेसिटी 40%, 60%, 80%, 100%। डायरेक्ट मटेरियल 12,000, 18,000, 24,000, 30,000, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सारा दिया हुआ है। यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल लिखा हुआ नहीं है, दिख रहा है ना? फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज नॉट रिटन। Owing to trade difficulties, the company is operating at 50% capacity. Currently, the company is operating at 50% capacity. Selling price have to be lowered to what the directors maintain is an uneconomic level, and they are considering whether or not the single factory should be closed down until the trade recession has passed. ठीक है, अभी रिसेशन चल रहा है, उसलिए अभी कितना 50% में प्रोड्यूस करे, बट डायरेक्टर्स बिलीव कि ये इकोनॉमिकल नहीं है, कंपनी लॉस कर रहा है, सो दे वांट टू डिसाइड ऑन वेदर द कंपनी वेदर द फैक्ट्री शुड क्लोज डाउन और नॉट। ठीक है। A market research consultant has advised that in about 12 months time there is every indication that sales will go to about 75% of the normal capacity, and that revenue to be produced from the sales in the second year will amount to 90,000। मतलब नेक्स्ट ईयर में 75% कैपेसिटी होगा और रेवेन्यू कितना होगा? 90। द प्रेजेंट रेवेन्यू फ्रॉम सेल अभी का कितना है? 50% कैपेसिटी में 49,500 फॉर अ कंप्लीट ईयर। इफ द डायरेक्टर्स डिसाइड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री फॉर द ईयर, अगर क्लोज कर देता है, क्लोज सिंपली नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ एडिशनल कॉस्ट भी आएगा और एग्जिस्टिंग कॉस्ट भी कम होगा। फर्स्ट कॉस्ट क्या कम होगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0। ठीक है। एडिशनल कॉस्ट क्या आएगा? पहले तो फिक्स कॉस्ट जो है वो 11,000 बन जाएगा, जितना भी था, कितना था हमें पता नहीं, बट वो 11,000 बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज डाउन करने से कुछ एडिशनल कॉस्ट आएगा जो कि 7,500, मेंटेनेंस के लिए 1,000 एडिशनल कॉस्ट आएगा, एंड ऑन रीओपनिंग द फैक्ट्री
द कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एंड ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ न्यू पर्सनल वुड बी 4000। मतलब अभी मैं अगर क्लोज कर देता हूँ, एक तो क्लोज का ऑप्शन है और एक क्या है, ओपन रखने का ऑप्शन है, कंटिन्यू रखने का ऑप्शन है। कंटिन्यू रखने से मेरा साल भर बाद मेरा 75% कैपेसिटी में मैं सेल्स कर सकता हूँ। ठीक है, कितना सेल्स होने वाला है, 90,000 का। अगर मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, मेरा सेल्स कितना रहेगा, 0% सेल्स, मतलब ये 0 रहेगा। लेकिन कुछ कुछ एडिशनल कॉस्ट आएगा जो कि मुझे निकालना है, कौन सा डिसीजन मुझे लेना है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। रजिस्ट्रेशन कितना है, 11। देखो अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ। आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा कब होगा, साल भर बाद ना, सेकेंड ईयर में होगा, है कि नहीं। कहाँ गया? ठीक है, सो अभी मैं करेंटली क्लोज कर सकता हूँ या मैं अभी 50% कैपेसिटी में कंटिन्यू रख सकता हूँ, है ना। और 75% कब होगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। सो मुझे तीन कैटेगरी बनाना पड़ेगा, एक 0%, एक 50% एंड 75%। तीन कैटेगरी हो गया। इसमें सेल्स कितना होगा, 0, 40, करेंट सेल्स 49,500 है ना, 49,500 एंड एट 75% कैपेसिटी 90,000। ठीक है, नाउ वेरिएबल कॉस्ट। इसमें तो पता है कि मेरा कुछ वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला नहीं है 0% में, लेकिन अभी 50% में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, वो करने के लिए मैं इधर वर्किंग नोट बनाऊंगा। ठीक है, हाँ क्या 15,000, क्या क्या कहाँ पे, 0% में, नहीं, इन टोटलिटी हम लोग कर लेते हैं एक बार में। ठीक है, एक एक करके करने से बेटर है। जैसे 50% वाला किसके अंडर में फॉल करता है, 40 और 60% के अंडर में, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट नहीं, सॉरी, टोटल कॉस्ट, एट 40% दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट एट 60% दिया हुआ है। हो सकता है इसमें वेरिएबल भी हो सकता है इसमें फिक्स भी हो, है ना। फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, वेरिएबल ही वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। 40% में टोटल कितना आ रहा है, टोटल करके देखो, 51,400, और 60% वाला में टोटल कितना आ रहा है, सारा कॉस्ट ऐड कर दो, सिक्सटी सेवन 600 आएगा।
सो आपका चेंज कितना हुआ है इधर, चेंज 20% हुआ है ना। 20% चेंज होने की वजह से आपका कॉस्ट में कितना चेंज आया है? हम्म, 16,200, ठीक है, 16,200। अभी 40 से 50 अगर जाऊं, इसको पहले तो 100% के लिए कितना होगा, 100% के लिए कितना होगा, ये वाला वेरिएबल कंपोनेंट हो गया, इतना समझ आ गया। क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड है, ये जो चेंज आया है किसके वजह से आया, वेरिएबल के वजह से। इस कॉस्ट को ऐसा जब दिया जाता है ना, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कुछ फिक्स कंपोनेंट भी रहता है, कुछ वेरिएबल कंपोनेंट रहता है, आपको इस तरीका से निकालना है, हमेशा याद रखना। दो लेवल ऑफ एक्टिविटी में या कैपेसिटी में जो डिफरेंस होता है वो ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। और भी एडवांस कंसेप्ट है, वो फाइनल में आएगा, कभी कभी फिक्स कॉस्ट भी वेरी करता है, बट फॉर द टाइमिंग यही होता है। ये मान लो कि जो कॉस्ट में डिफरेंस आया टू डिफरेंट एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटीज में, वो ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। तो 100% में कितना होगा इसका, 81,000। तो हमें कितना का निकालना है, 10% का निकालना है, या फिर डायरेक्टली निकालो, 10% का क्यों निकालना है, डायरेक्टली निकाल लो। हमें कितना का निकालना है, 50% का। कितना, 40,500, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी हाथों हाथ निकाल लेते हैं 75% का। हम लोग डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं हाथों हाथ, लेकिन नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि 40% और 60% का बीच में फिक्स कॉस्ट वेरी ना किया हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है 60 एंड 80% का, जो 75% कहाँ फॉल करता है, 60 एंड 80% का बीच में फॉल करता है। हो सकता है वहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट वेरी किया हो, फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेस लेके वापस से हमें नहीं करना है, इस लेवल पे नहीं करना है। इसके लिए हम लोग जो 80% एंड 60% का कंपैरिजन है वो ड्रॉ करेंगे। वाई, बिकॉज 75% फॉल्स इन बिटवीन 60 एंड 85%, ठीक है। ये वर्किंग नोट ए है, ये वर्किंग नोट बी। सो टोटल कॉस्ट एट 60% एंड टोटल कॉस्ट एट 80%, ठीक है। 60% का टोटल कॉस्ट कितना है, 67,500 600, और 80% का कितना है, 83,800। डिफरेंस कितना है, 16 सेम है। लकीली सेम है तो बढ़िया है, बट इट मे नॉट बी सेम। हाँ, इस केस में सेम है। सो हमें 75% का निकालना है, कितना आ रहा है, 60,750। सो इस केस में वेरिएबल कॉस्ट इज 40,500 एंड यहाँ पे 60,750। सो कंट्रीब्यूशन इसमें तो ज़ीरो, इसमें कितना है, 9,000 एंड 29,250। यहाँ से क्या माइनस होगा, फिक्स कॉस्ट। हाँ, फिक्स कॉस्ट कहाँ से निकलेगा, कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लो और एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओ, यहाँ पे बना देता हूँ। कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लो, ठीक है। मैं 40% वाला ही लेता हूँ। नहीं, 40% लेने से नहीं होगा, फोर्टी परसेंट लेने से नहीं होगा। 50% का फिक्स कॉस्ट, और क्या इन्फॉर्मेशन है,
हाँ तो ये तो कैसे इजीली निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा ये। कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट एट 40% कैपेसिटी कितना है, सॉरी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कोई भी लेवल ले लो, ठीक है 40% ही ले रहा हूँ, कितना आ रहा है 40% में 51,400, कोई भी लेवल लो सेम आंसर आएगा, ठीक है। इससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 100% के लिए कितना था, तो 40% के लिए कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट, 32,400। सो फिक्स कॉस्ट कितना निकल गया 19,000 है ना। कुछ डाउट है तो फिर से देख लो, कोई भी लेवल ले लो सेम ही निकलेगा। बेसिकली टोटल कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव फाइंड आउट द 100% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, सो अकॉर्डिंगली आप उसका 40% ले लो, या अलग लेवल से कंपेयर करो तो दूसरा लेवल का ले लो, ठीक है। So 19,000 फिक्स कॉस्ट है एंड हियर आल्सो इट इज 19,000, बट इस केस में जीरो वाला केस में कितना है 11,000, 11 प्लस 7,500 प्लस 1,000 प्लस 4,000, हाँ हाँ, तो रीओपनिंग तो पीरियड कॉस्ट ही है ना, वन टाइम कॉस्ट ही है। आप अगर कंटिन्यू करोगे, रीओपनिंग मतलब क्या, एक साल बाद तो एनीवेज रीओपन तो करना ही है, हम लोग तो करंट ईयर का डिसाइड करें वेदर टू कंटिन्यू एट 50% और टू शट डाउन, हम लोग परमानेंट शट डाउन नहीं करे, वी आर शट डाउनिंग फॉर अ ईयर, ओके। क्या 19,000 ऐड करना चाहिए, वही काट के 11,000 बन गया, कितना आ रहा है 23,500। सो इसमें तो लॉस आ रहा है ना, ये प्रॉफिट या लॉस, $10,000 लॉस आ रहा है और इसमें 10,250। तो हमारा डिसीजन क्या होने वाला है, if we are going to shut down the operations in the current year, then our losses is maximum, so our decision should be to continue at the existing capacity of 50%, and from second year onwards we'll earn profit from of rupees 10,250, ठीक है। इसका कंक्लूजन वैसे लिखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बाकी रह गया ना, ये भी करवा ही देता हूँ, एकदम छोटा क्वेश्चन है, कितना टाइम हो गया और 15 मिनट्स है मेरा हाथ में, ये सब लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा मेरे साइड से। A company producing two products A and B. The particulars of the company are as follows. Product A, Product B, दोनों का सेल्स और कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मशीन आवर्स दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स दिया हुआ है, कमेंट यहाँ पे देखो अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है ना, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज द की फैक्टर, अगर सेल्स पोटेंशियल लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर
टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यूज इज अ की फैक्टर, तब क्या निकालना है? अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट इन इज इन शॉर्ट सप्लाई है तब क्या करना है? अगर सब जैसे अलग अलग फैक्टर्स है तो हमें हर एक के लिए अलग अलग क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है ना? कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है? टोटल कंट्रीब्यूशन ट्वेंटी, इसमें लॉस है, लॉस कैसे हो गया? ठीक है, तो पहला का आंसर निकल गया। यूनिट्स अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? प्रोडक्ट ए। देन कंट्रीब्यूशन पर टोटल सेल्स पोटेंशियल के हिसाब से, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, सेल्स कितना है? 75। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा बेसिकली, प्रॉफिट बोल लो या कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो बोल लो। ठीक है, तो पीवी रेशियो जिसका हायर होगा वो रैंक 1 होगा, है ना? ठीक है, 26.666 और इसमें 22.5। तो इस केस में भी कौन सा बेटर है? ये वाला ही बेटर है। रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट इन सप्लाई है तो कैसे होगा? दोनों का सेम सेम है, कितना कंट्रीब्यूशन निकलेगा पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल? 10 और 9, उसमें भी ए। ये जस्ट क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स कैन बी। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर इज द लिमिटिंग फैक्टर। अगर मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है तो उस हिसाब से 6 पॉइंट कितना आएगा? ये 6.63 ऐसा कुछ आएगा, है ना? और इस केस में कितना आएगा? 9। तो इस केस में अगर सॉरी 9, तो अगर मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर है देन प्रोडक्ट बी इज बेनिफिशियल। ठीक है, अंडरस्टूड? मशीन आवर्स कितना है? 3 है और प्रोडक्ट बी के लिए 2 है। सो कंट्रीब्यूशन कितना है? 20 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर, और इस केस में भी 18 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकल जाएगा। So with this we conclude marginal costing from my end. Of course, if you have any questions or doubt, we can take extra classes or we can discuss it, okay? Because it covers most of the portion of your syllabus, है ना? 30%। उसके साथ साथ थियरीज भी करना है, कभी कभी क्वेश्चन आ गया डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया। ठीक है, थियरीज भी थोड़ा बहुत देख लेना। Okay, so thank you so much.